Good morning, students of the BSc third year classes. Subject is the zoology and topic is today's to the related with the ecology, the population ecology. This is the another branch which are closely related to the population. Population would so that to the we just know. And try to understand about to the what is the population and which means that to the group of the individual which are found into the particular areas and to the number of the different groups of the individuals which are occupying into the specific places, so that to the today's topic is considered about to the what is the numbers of the heterogeneous groups or the homogeneous groups which present in that area per unit or the times and the per unit of the volumes, so that and which belongs to the also what is the population and their characteristic feature, because the so numbers of the characteristic feature that's have to the entity, because the population is the group that is the entity which have to the also their character and there are the value are the their qualities for that to the aliveness. So in the population which are which can say that about to the numbers of the characters, characteristic feature of just like to the population size, density, natality or the birth rate, mortality or the death rate, fluctuations, dispersion, growth forms, and to the all the biotic potential, so that to the all the characteristic feature which are included and they are given as a representation of the unique identification, so that I will try to explain that to the first of all what is the population, what is the community and their characteristic feature, so that first is that to the population ecology. Population ecology is the branch of ecology in which to the study up to the homogeneous and heterogeneous collection up to the individual which per unit time or the per unit volume or and their characteristic feature, so that in the simple words we can say that this is the group of the same species or the group of the different species into the particular geographic areas which having to the so many characters just like to the density, size, natality, mortality, etc. So, to the beginning of the topics for the population, on the discussion about to the population, regarding to the population, first know that to the meaning of the population. The meaning of the population is that these are the come from to the Latin word. Latin word. In the Latin word, the populus in the Latin word the populus, which means that to the people, which means populus, people. In the Latin word, that is the populus. Populus means the people. So that to the population, which means that to the that area in that time which present, which occupied in that time, so that to the playing lot of the activities, lot of the representations. So, as you can say that to the population is the group of the peoples. So, these words which come from to the especially for that human population in the city
a human population in the city, so that to the but in the biological sense, this is the human population in the city, but in the biological sense, what is the meaning of the population? In the biological sense, the meaning of the population is that to the population is the defined as population is a assemblage of to the organism which belong to the single species, which means a population is the assemblage of group of assemblies, population, a population of assemblies of group of organism, a population of assemblies of group of organism, in which is consist of to the either plant or the animals, or the both plant and animals, of group of organism of same species or closely related species, occupying a particular area, occupying in particular this is the in the general words, this is the definition of the population, as you can say in the earlier to the, this is from the Latin word is the populace, which means that to the, this is the people group of the peoples in the particular city, that is the means are the referred to the populace. But in the according to the biological sense, are to the apart to the biological sense, to the population of the assemblies of the group of the organism, either a plant or the animals of the same species or the closely related species occupying into the particular area and in that particular time. So that which means that to the a group of the same species or the closely related species that present in the any kinds of the geographic area, where any kinds of geographic area into the particular region, so that to the this kinds of the group of the assemblies which occupied is called to the population. Population in the generally short word to the a group of same species, that is called to the population. But we are just distinction or the distinguish in between to the population and the community. They are the two kinds of the words which are the population and the community. Population, second is community. Population, that means to the other group of same species, but the meaning of the community is a group of different species. What is the meaning of? The group of the population, any kinds of the population which are belonging to the plant, animals, microbes, the same species which are occupied in the specific geographic areas in the particular time,
So that is called to the population, but in the refer to the community is the group of the different species, which means that to the heterogeneous collections that's occupied into the geographic area of that time. So that is called to the community. So that is as you can say in the biotic community which are have to the plant and animals both have. So that this is the community. So population and the community is distinguishing together. For the better explanation, we are go now to the population is assembling up to the same species are the closely related. Just like to the example for that to the explanation of to the grasshoppers in the field, bullfrogs in the ponds, and to the human into the human population in the city. So grasshoppers, just example are the human population in city, grasshopper in the field, bullfrog in ponds, etc. So human which are human population are the crowd population which are found into the any city, so that is referred to the same type of the collection is found in that area. As you same that is the field, in the particular field in the grassland areas where are the grasshoppers is the present, so that is the group of the grasshoppers is the found into the feeding to the grass and found in the area. So and bullfrog in the ponds there are the homogeneous collections up to the frogs in the pond, so that is the representing to the as an example of the population. So I hope you are better understand of the population and the community. Population is the same group of the same species, and the community is the different species collection. These are depend upon the collections and the occupation occupied of the same or the different species. So we are just go now to the according to the Wayne Edward, population is the self. Wayne, that is the scientist Wayne Edward is can say that population is a self-regulating system. Population is self-regulating system. This is a very important line for the Wayne Edward. Population is a self-regulating system, which means that to the population which are have to the all the characteristic feature which explain itself, just like to the density, size, motility, growth form, dispersion, biotic potential, growth forms, all the features. So which means that for the explanation of to the population, this is the including immigration, migration, size, and the crowded pollution, new individuals which are came, that is going into the individual into the death. So
all the activities which are done, so that to the Van-Edwards is called to the self-regulating system. All the systems, these systems which are performed by to the on depend upon their quality, so that this is the self-regulating system. And after that to the Clark, which are distinguished to that to the population is the two types. Population is the two types. Population is two types according to Clark. तो इस चैप्टर में हम जो कि पॉपुलेशन इकोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, हम पॉपुलेशन को देख रहे हैं, जहाँ पे ग्रुप ऑफ द कलेक्शन है किसी एक सेम इंडिविजुअल का या क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का, जिसके अंतर्गत हमने बताया आपको कि ये पॉपुलेशन का क्या जो है एग्जाम्पल होता है और पॉपुलेशन और कम्युनिटी में क्या अंतर होता है। और वैन-एनवर्ड के हिसाब से सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है, क्योंकि पॉपुलेशन के अंतर्गत जो है बहुत सारे फीचर्स पाए जाते हैं जो कि वो उसको अपने आप में रिप्रेजेंट करता है कि ये एक लगातार चलने वाला, बदलने वाला, मॉडिफाइड करने वाला सिस्टम है। मतलब मॉडिफिकेशन से यहाँ पे मतलब ये है कि वो लगातार वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलता रहेगा, जिसके माध्यम से वो अपने आप को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है और प्रक्रियाओं को लेके चलता है। फिर क्लार्क, according to the Clark, this is the Edward Vane, according to the Clark, population is two types: monospecific population and polyspecific population. Monospecific population and the polyspecific population. What is the mean by the monospecific and to the polyspecific populations? That's monospecific. First, monospecific population, and second is polyspecific population. Polyspecific population. First is the monospecific, which means that to the, as you earlier to mention that about to the, there are the group of the same species is found into the geographic area, that is called to the population. So monospecific population is the collection of to the same species in that area, that is called to the monospecific population. But into the case of to the polyspecific, the several kinds of the species which are found into the that area, several species found in that area, that is called to the polyspecific population. As you can say that this is the most of the more or less to the community, because in the communities different kind or the several kinds of the species which are found. So this is the polyspecific or the mixed population as well, which are called polyspecific population is also called to the mixed population. So that to the, according to the Clark, that is going into the two kinds of the populations. And after that we are going into the preceding for to the topics of to the population. We know that we try to know that about to the what is the characteristic feature of the population, to several numbers of the characteristic feature of the population which are found for just like to the size, density, natality, mortality, growth forms, biotic potential, dispersion. So a lot of the qualities, and on behalf of this quality, this is the Van-Edwards is called to the population is the self-regulating system. So we just go now into the characteristic feature of the population and describe in the details. For the better explanation of the population, we just go now to the try to understand about to the what is the characteristic feature of the population. So first of all, the numbers of the Thomas Park. According to the Thomas Parks, the population has several characteristic features. Thomas Park
population है to the several characteristic feature, several characteristics. In the first is that to the population density and population size. Population density and population size. तो पहला हम समझते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन साइज को कोई कि इसका क्या मतलब होता है। पॉपुलेशन जो होता है, पॉपुलेशन साइज का मतलब ये होता है, यहाँ पे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉपुलेशन साइज। तो पॉपुलेशन साइज विच आर एक्सप्रेस्ड टू द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन इज कॉल्ड टू number of individual in population in a population is called to number of the individual expressed in the population is called to population size। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन में दिखाई देता है, जबकि पॉपुलेशन डेंसिटी को डिफाइन करना है तो नंबर ऑफ द इंडिविजुअल। अब पॉपुलेशन डेंसिटी को अगर डिफाइन करना हो तो क्या होगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। यहाँ पे देखिए क्या है, नंबर ऑफ द इंडिविजुअल पर इन द पर यूनिट एरिया। यहाँ पे एरिया के हिसाब से जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है वो डेंसिटी को रिफर्ड कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एक विशेष टाइम में जो ज्योग्राफिक एरिया है, जो पर्टिकुलर स्पेसेस है, वहाँ पे पाए जाने वाले जो भी पॉपुलेशंस होंगे या फिर जो क्राउड होगा, जो डेंसिटी वहाँ पे होगी पॉपुलेशन की, उसको यहाँ पे रिफर्ड किया जाता है। तो आप कह सकते हैं, यू कैन से दैट अबाउट टू द पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिफाइंड एज टू द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल इन पर यूनिट एरिया और द पर यूनिट time, and the population size is only expressed that by the number of the individual in a population. So तो number of the population इंडिविजुअल का जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का एक जो नंबर होगा, जो वो पॉपुलेशन से बिलोंग करता होगा, वहाँ पे पाया जाता होगा, उसको कहा जाता है साइज। पॉपुलेशन की वो साइज हो गई, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल उस एरिया को, उस वहाँ पे पाए जाने वाले रिसोर्सेज को वहाँ पे अफेक्ट, जो इकोलॉजिकल फैक्टर से वो अफेक्ट होकर अडॉप्ट कर रहा है, उन सारी चीज़ों को मिला के, मतलब जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं उन सारी चीज़ों को मिला के वो पॉपुलेशन की साइज़ को एक्सप्रेस करता है। जबकि डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी का मतलब होता है कि क्राउड पॉपुलेशन या क्राउड नंबर ऑफ द इंडिविजुअल विच ऑक्युपाइड इन द स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया। तो किसी एक विशेष प्रकार के एरिया में पाए जाने वाले जो नंबर ऑफ द इंडिविजुअल हैं, उसके नंबर पे डिपेंड करता है डेंसिटी। तो डेंसिटी जो है वहाँ पे ये डिपेंड करती है। तो अब एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ द स्क्वायरल्स प्रेजेंट, नंबर्स ऑफ द स्क्वायरल्स पर मील, नंबर ऑफ द अर्थ वर्म्स इन द पर एकड़ एंड नंबर ऑफ द डायटम्स पर लीटर ऑफ वाटर। तो कुछ एग्जांपल्स हमने बताया कि स्क्वायरल का ले सकते हैं आप, जो है अर्थवर्म का ले सकते हैं, या फिर जो है डायटम्स का ले सकते हैं। जबकि ये when the individual size of the population is highly variable, some type of the biomass or the live weight measure is used as the unit of density। तो इस प्रकार से पॉपुलेशन डेंसिटी को एक्सप्रेस किया जाता है। अब यहाँ के आधार पे हम कह सकते हैं देयर आर द टू वेज ऑफ द एक्सप्रेसिंग। अब पॉपुलेशन डेंसिटी को हम दो प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं।
किसके आधार पे? एक होता है पॉपुलेशन डेंसिटी के अंतर्गत कि हम जो है उसको क्रूड डेंसिटी और इकोलॉजिकल डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्रूड डेंसिटी और दूसरा इकोलॉजिकल डेंसिटी होता है। इकोलॉजिकल डेंसिटी यहां पे समझने का प्रयास करिए। क्रूड और इकोलॉजिकल डेंसिटी ये एरिया और इंडिविजुअल के नंबर पे डिपेंड करता है, जबकि क्रूड डेंसिटी टोटल नंबर ऑफ द इंडिविजुअल प्रेजेंट इनटू दैट एरिया उसको कहा जाता है, और इकोलॉजिकल नंबर ऑफ द इज द नंबर ऑफ द टोटल एरिया। तो कहने का मतलब है कि ये क्रूड का मतलब यहाँ बायोमास से है, इंडिविजुअल का जो बायोमास है पर यूनिट ऑफ द एरिया पर यूनिट ऑफ टाइम में, मतलब पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में जो पर यूनिट टाइम होता है उसमें पाए जाने वाले इंडिविजुअल या फिर उसके बायोमास को ये रिलेट करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि क्रूड डेंसिटी इज डिफाइंड एज the individual number of the individual which are found in the per unit of area and the per unit of time, or the biomass of the individual into the per unit of area and the per unit time। लेकिन जब जो अगर हम इकोलॉजिकल डेंसिटी की बात करें तो इकोलॉजिकल डेंसिटी कहलाता है नंबर ऑफ एरियाज प्रेजेंट, नंबर ऑफ एरिया की बात करता है ये। अब आप समझें कि इकोलॉजिकल डेंसिटी क्या है? नंबर ऑफ द एरियाज इज रिलेटेड टू द इकोलॉजिकल डेंसिटी इज नंबर ऑफ द इंडिविजुअल, नंबर ऑफ द टोटल एरिया और द टोटल वॉल्यूम। नंबर ऑफ द टोटल एरिया की बात कर रहे हैं हम, टोटल एरिया की बात कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा? टोटल एरिया में प्रेजेंट होने वाले, उपस्थित होने वाले जो इंडिविजुअल हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ द इंडिविजुअल और द बायोमास पर यूनिट ऑफ एरिया और पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ये रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार से पॉपुलेशन डेंसिटी, तो आपने समझ लिया होगा कि क्रूड डेंसिटी क्या है और इकोलॉजिकल डेंसिटी क्या होता है। ये पर्टिकुलर बायोमास को रिप्रेजेंट करता है और ये नंबर ऑफ द टोटल एरिया। तो टोटल एरिया में पाए जाने वाले जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स होते हैं उनके ग्रुप्स को, उनकी डेंसिटी को, उनके जो है कलेक्शन को वहाँ पे इन सब के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी को। तो पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या होना चाहिए? वहाँ पे एरिया होनी चाहिए और एरिया के साथ साथ में उसमें वहाँ पे पाए जाने वाले जो आपके कलेक्शंस हैं, आपके जो ग्रुप हैं इंडिविजुअल्स के, वो तो दोनों चीज़ें आप यहाँ पे देख रही है। पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम की उस विशेष टाइम में उस जियोग्राफिक एरिया में जो कलेक्शंस हैं, जो ग्रुपिंग है उसको, और उस एरिया के अंतर्गत जितने भी स्पेसिस हैं, जितने भी एरियाज हैं उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे क्रूड डेंसिटी इसके माध्यम से और इकोलॉजिकल डेंसिटी एरिया के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस आधार पे आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। इसको डिफाइन करना होगा तो हम देखते हैं D = N/A अपॉन T। अगर डेंसिटी को रिप्रेजेंट करना है तो फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं D = N/A अपॉन T, N/A अपॉन T। ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूले को हम समझ लेते हैं। D = N/A। अब क्या है? D क्या है? डेंसिटी है। D = डेंसिटी। N क्या है? स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल की हम बात करते हैं। इंडिविजुअल की बात करते हैं। ए क्या है? ए का मतलब है एरिया से बिलोंग करते हैं, और टी क्या है? टाइम। टी = टाइम, पर यूनिट ऑफ टाइम। तो देखें D = N/A अपॉन T के रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है। N/A अपॉन T को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिसमें आप देखते हैं कि ये इंडिकेट करता है कि
डेंसिटी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, नंबर ऑफ द इंडिविजुअल होनी चाहिए, इंडिविजुअल के साथ साथ में उसके साथ में क्या होनी चाहिए, उसका एरिया भी होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें जो कलेक्शंस हो रहे हैं वो एरिया में, वो उसको क्या करते हैं, वो वहाँ पे उस टाइम के विदिन होनी चाहिए। तो उस टाइम के अंतर्गत अगर हम इस चीज़ों को जो है डिवाइड कर देंगे तो हमें जो है टोटल डेंसिटी प्राप्त हो जाएगा। तो इस फार्मूले के आधार पे ये आपने समझने का प्रयास किया कि पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन साइज क्या होती है। अगले चलते हैं अगले कैरेक्टरिस्टिक फीचर की तरफ, जो है अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहलाता है अगले उसको बोलते हैं नेटिलिटी और बर्थ रेट। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नेटिलिटी और बर्थ रेट। अब देखिए दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है, ये किसी भी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, नेटिलिटी विच मीन्स दैट द बर्थ रेट। अब क्या है, पॉपुलेशन जो है ये शो करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि बहुत सारे जो न्यू इंडिविजुअल हैं वो वहाँ पे आते रहते हैं। आने का मतलब है कि बॉर्न होते रहते हैं या ऐड होते रहते हैं, जो कि उसके नेटिलिटी को शो करता है। तो क्या मतलब हुआ कि नेटिलिटी विच आर डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ द न्यू इंडिविजुअल विच आर एडेड इन द पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड टू द नेटिलिटी और द बर्थ रेट। क्या हुआ कि जो औसत में जो नए इंडिविजुअल्स हैं वो किसी पॉपुलेशन में जुड़ते चले जा रहे हैं या जुड़ते हैं, तो उसको उस पॉपुलेशन का बर्थ रेट या नेटिलिटी कहा जाता है। नेटिलिटी का मतलब हिंदी में बोला जाता है जन्म दर। तो अब आप जानते हैं कि अगर कोई एक पॉपुलेशन है जहाँ पे उस पॉपुलेशन का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसमें इंडिविजुअल जो है नए यंग वंस को क्रिएट करता है, मतलब वहाँ पे बॉन्ड होता है, और ये प्रवृत्ति होती है चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे अदर एनिमल्स हो, या फिर प्लांट की हम बात करें तो वहाँ पर भी जो है न्यू यंग वंस हो जो है वहाँ पे डेवलप होते हैं। तो इस प्रकार से नए इंडिविजुअल्स जो है जब ऐड होते हैं, आते हैं तो उस पॉपुलेशन में, तो वो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के रूप में आ रहे हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे वो क्रिएशन नहीं होगा तो फिर वो जो हमने कहा कि ग्रुपिंग होगी वो नहीं हो पाएगी, या फिर ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बर्थ रेट यहाँ पे एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर के रूप में यहाँ पे शो कर रहा है। हम इसको समझ लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि एवरेज नंबर ऑफ द न्यू इंडिविजुअल, एवरेज number of new individual added in the population, added in a population that is called to the natality or the birth rate। अब ये समझते हैं कि आप जानते हैं ये नेटिलिटी भी यहाँ पे दो प्रकार से शो होती है, मैक्सिमम या पोटेंशियल नेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, या फिर जो है एक्चुअल और रियलाइज्ड। मतलब इसके अंतर्गत भी दो प्रकार के बर्थ रेट रिप्रेजेंट होते हैं। एक क्या मैक्सिमम बोलते हैं, ध्यान से समझिए, मैक्सिमम बर्थ रेट, और मैक्सिमम बर्थ रेट या फिर पोटेंशियल बोला जाता है, और करके लिख सकते हैं आप, और पोटेंशियल बर्थ रेट पूरी क्षमता के हिसाब से। और दूसरा है इकोलॉजिकल और रियलाइज्ड भी बोलते हैं इसको, या एक्चुअल भी बोलते हैं इसको। एक्चुअल और रियलाइज्ड, इसको कई नाम से जाना जाता है। रियलाइज्ड बर्थ रेट है।
अगर हम समझने का प्रयास करें कि जैसे हमने कहा कि एवरेज नंबर ऑफ द न्यू इंडिविजुअल विच आर एडेड इन पॉपुलेशन दैट इज कॉल्ड टू द नेटिलिटी, बट इन द नेटिलिटी विच आर कॉन्सिस्ट ऑफ द देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द बर्थ रेट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द बर्थ रेट एंड द एवरेज आर द एक्चुअल नंबर ऑफ द बर्थ रेट। बिकॉज अब इसका एक्सप्रेशन कैसे होगा, यहाँ पे एक बात समझने वाली बात है कि पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें या फिर किसी अन्य एनिमल्स की बात करें, तो वहाँ पे देखेंगे कि इंडिविजुअल तो बॉर्न बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें हो सकता है कि कुछ की संख्या कम हो जाए। मतलब अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, वन टाइम इन द पर यूनिट टाइम में जो मैक्सिमम बर्थ रेट हुआ, एक टाइम में जितनी जो है वहाँ पे प्रोजेनी थे उन्होंने जन्म लिया, लेकिन वो कितने ने ये इस इन्वायरमेंटल कंडीशन में अपने आप को सरवाइव किया, वो डिपेंड करता है। मतलब इकोलॉजिकल फैक्टर यहाँ पे डिपेंड करेगा, इकोलॉजिकल फैक्टर के आधार पे यहाँ पे डिपेंड होगा कि वो कितने नंबर में वहाँ पे जीवित रह रहे हैं। तो इसी के आधार पे स्ट्रक्चरल फीचर्स है, इन्वायरमेंटल कंडीशन या जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे रोल प्ले करते हैं और वो सरवाइव करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि maximum birth rate or the potential birth rate or potential is indicating to the potential up to the male and the female, or the fertility up to the male and the female, and or the production up to the female individuals। तो यहाँ पे फीमेल इंडिविजुअल के प्रोडक्शन पे और जो मेल और फीमेल के फर्टिलिटी जो पोटेंशियल है, उसका पावर है, उस पर डिपेंड करता है मैक्सिमम बर्थ रेट को। लेकिन जो एक्चुअल की बात हमने की, जो रियलाइज की बात की जा रही है, या इकोलॉजिकल जो जितने मैक्सिमम में, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे हमने कहा कि अगर 100 इंडिविजुअल्स एक टाइम में उत्पन्न हुए, बॉर्न पैदा हुए, तो इसमें से हो सकता है कि केवल 20 ही जिंदा रह पाएँ। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटर स्पेसिफिक और एनवायरमेंटल स्ट्रगल्स होते हैं वहाँ पे जो है अपने आप को सरवाइव करने के लिए। जैसे अगर हम ये कहें कि अभी हमने बात किया कि मेल और फीमेल की फर्टिलिटी पे आधारित है, अगर कुछ वहाँ पे यंग वंस एग में हैचिंग कर रहे हैं, एग को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि एग जो है वो मेटामार्फोस करके उसमें एडल्ट में ना कन्वर्ट हो। अगर एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें वो कैपेसिटी ना हो जो कि फिर से प्रोडक्शन कर सके। तो इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कुछ न कुछ जो है वहाँ पे डिसऑर्डर होते रहेंगे और वो डिक्लाइन करते चले जाएंगे, जिससे कि उनका नंबर रिटार्ड हो जाए, चेक हो जाएगा, और उसके आधार पे जितने इंडिविजुअल्स बचे रह जाएंगे वो रिमेनिंग आर द रेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल आफ्टर द सर्वाइविंग दिस नंबर इज कॉल्ड टू द एक्चुअल नंबर और द एक्चुअल बर्थ रेट। तो इस आधार पे हम समझ सकते हैं कि उसका क्या नंबर है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जो किसी भी पॉपुलेशन में जो फीमेल होती है वो नंबर ऑफ द एग्स को प्रोड्यूस करती है, और नंबर ऑफ द एग्स को प्रोड्यूस करने के आधार पे हम इसको मैक्सिमम बोलते हैं। लेकिन इकोलॉजिकल को प्राप्त करने के लिए वहाँ पे हम ये कंसीडर करते हैं कि जो फीमेल होती है, इक्वली जो फीमेल होती है वो क्या करती है। सबसे पहले हम समझते हैं इसके लिए, एक्चुअल के लिए, कि सभी फीमेल फर्टाइल नहीं होती। फीमेल में सब फर्टाइल नहीं होती। अगर फर्टाइल है तो एग का जो प्रोडक्शन हुआ वो संपूर्ण एग हैचअप नहीं करेंगी। अगर हैचअप कर लिया, ये हैच करके लार्वी में कन्वर्ट हुई, तो वो एडल्ट हुड को अटेन नहीं कर पाएंगी। मतलब फर्टिलिटी, पहले तो हर में फर्टिलिटी जो है वो नहीं पाई जाती। अगर उसमें एग्स जो है जो क्या कहते हैं कि हैचिंग प्रोसेस है, एग्स जो है वो हैच किए, एग्स में सब में हैच करने की पोटेंशियल नहीं होती, तो एग्स में, या फिर कुछ जो अगर कुछ की संख्या में वो बचे रह गए तो वो क्या कहें लार्वी में कन्वर्ट हुए, और लार्वी में बहुत सारे में लार्वी में से वो एडल्टहुड में
को अटेन करने की क्षमता नहीं पाई जाती। इस आधार पे तो हमने ये माना कि अगर ये 100 इंडिविजुअल है फीमेल का जो कि है, अब इसमें हम मानते हैं कि जो 80 ही फर्टाइल है, 20 out of the 100 only to 80 which are have to the fertility power and to produce to the numbers of the egg, but in the condition that is the if you mind that is going into the 1000 eggs which are producing into the 80 in the मस्का डोमेस्टिका जिसको बोलते हैं, जो मक्खी होती है, उसमें उसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो उस एग्जाम्पल के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो वो बहुत सारे इंडिविजुअल्स को जो है जन्म देती है और उसके आधार पे जो है हम ये कह सकते हैं कि 10 to power 22 कह सकते हैं। मतलब जीरो की संख्या अगर 22 हो तो सोचिए इतनी संख्या में जो है ये एक्स को प्रोड्यूस करती है। लेकिन आप सोचिए अगर इतनी संख्या में जो है एक्स प्रोड्यूस हो जाएं और ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएं तो पूरी पृथ्वी को एक कवर कर लेंगे। तो इसके आधार पे हम यहीं पे लेके चलते हैं, तो उसी रेशियो में हम यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर हमने 1000 माना तो 1000 में हैचिंग करने का पावर सब में नहीं होता। हमने कहा 5000 ही हैचिंग करने की कैपेसिटी को रखती हैं और लार्वी में कन्वर्ट होती हैं। लेकिन लार्वी में कन्वर्ट होने के बाद ये जरूरी नहीं है कि वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी। एडल्ट में कन्वर्ट हो सकता है कि इसमें केवल 2000 की संख्या में ही वो कन्वर्ट हो पाई और 2000 जो है एडल्ट यहाँ पे प्राप्त हुए। लेकिन अगली जो पोटेंशियल क्षमता है हो सकता है 1000 ही हो। तो 1000 ये क्या दिखा रहा है? इकोलॉजिकल या एक्चुअल या रियलाइज्ड बर्थ रेट को दिखा रहा है। तो किसी भी पॉपुलेशन में जो न्यू इंडिविजुअल्स ऐड हुए हैं उसकी जो रियलाइज्ड कैपेसिटी है वो 1000 की है, जबकि जो मैक्सिमम बर्थ रेट है वो कितना था? वो ये यहाँ पर 5000 के आसपास था। तो 5000 से 1000 के आसपास होना ये डिफरेंस दिखाता है मैक्सिमम और एक्चुअल बर्थ रेट को। तो इस आधार पे आप समझ सकते हैं कि बर्थ रेट को किस प्रकार से दिखाया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल होता है इसको फार्मूलेट हम इस प्रकार से करते हैं, B = n/T। B = n/T। ये देखिए ये फार्मूला है इसका। B क्या मतलब है? बर्थ रेट है, बर्थ रेट है इसका। n/T क्या है? n देख लेते हैं पहले। n नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल विच आर एडिंग द पॉपुलेशन। नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल एडेड पॉपुलेशन, एडेड इन पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हैं। और T इज द टाइम। तो आप देखिए इन द पर यूनिट टाइम में एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में जो है जो नंबर ऑफ द न्यू इंडिविजुअल ऐड हो रहे हैं वो क्या कहला रहे हैं? नेटिलिटी को। तो B = n/T इज फॉर्मुलेटेड दैट टू द प्रोसेस ऑफ टू द नेटिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन। अब हम तीसरे पे चलते हैं। तीसरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर के आधार पर चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से ये और कौन से कैरेक्टर को देखता है। तीसरा जो कैरेक्टर होता है वो हमारा वो होता है, तीसरे कैरेक्टर को डेथ रेट बोलते हैं या उसको बोला जाता है मॉर्टेलिटी। वो क्या होता है? मॉर्टेलिटी, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। मॉर्टेलिटी के आधार पे हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से पॉपुलेशन अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तीसरा, थर्ड जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी। तो अब थर्ड में देखें मॉर्टेलिटी और डेथ रेट।
अब यहाँ पे समझने का प्रयास करें, जैसे अभी आपने नेटिलिटी को रिप्रेजेंट किया था, समझा था, उसी प्रकार से अब आप मॉर्टिलिटी को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ द इंडिविजुअल डाइंग पर यूनिट ऑफ टाइम, नंबर ऑफ इंडिविजुअल डाइंग पर यूनिट ऑफ टाइम। पर यूनिट ऑफ टाइम में जो किसी भी पॉपुलेशन से नंबर ऑफ द इंडिविजुअल क्या करते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस आधार पे यहाँ पे इसको मॉर्टेलिटी बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं, यू आर जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द एनी पॉपुलेशंस वेयर हैव टू द कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट इज द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स that is going into the death, so that to the this is the one of the characters। तो किसी भी पॉपुलेशन में वो डेथ होना, जन्म होना, ये उसके कैरेक्टर्स के रूप में आता है। तो ये सारे कैरेक्टर यहाँ पे हम एक करके रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, जिस प्रकार से हमने मॉर्टिलिटी के रेफरेंस में आपको बताया था कि वहाँ पे मैक्सिमम और पोटेंशियल बर्थ रेट होता था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी पोटेंशियल मॉर्टिलिटी और रियलाइज, तो यहाँ पर भी ये दो प्रकार के हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। पहला पोटेंशियल, वही मैक्सिमम या पोटेंशियल मॉर्टिलिटी, और दूसरा है ये पोटेंशियल मॉर्टिलिटी और रियलाइज्ड मॉर्टिलिटी। इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो है दो प्रकार की मॉर्टिलिटी यहाँ पर भी पाई जाती है। अब यहाँ पे सेम उसी प्रकार से आपको समझना है कि मैक्सिमम या पोटेंशियल मॉर्टिलिटी क्या है और रियलाइज मॉर्टिलिटी क्या है। तो पोटेंशियल मॉर्टिलिटी यहाँ पे जो पाई जाएगी वो आइडियल कंडीशन में पाई जाएगी, और दूसरी जो होगी वो साइज, कंपोजिशन और डेंसिटी के आधार पे होगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल मॉर्टिलिटी मतलब मिनिमम और रियलाइज मॉर्टिलिटी मतलब एक्चुअल। यहाँ पे उल्टा हो गया। आप देखिए, अब बर्थ रेट में इसको मैक्सिमम आप रिप्रेजेंट करते थे और रियलाइज में यहाँ पे एक्चुअल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका आप क्या मतलब है, आप ये जानते हैं कि एनी काइंड्स ऑफ द पॉपुलेशन विच आर हैव टू द ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड इन द ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स दैट इज द कंप्लीटिंग देयर टाइम एंड द गोइंग इनटू द डेथ। तो अपने टाइम को कंप्लीट करके जब ओल्ड स्टेजेस में जब कोई मृत्यु होती है तो वो मिनिमम मॉर्टिलिटी कहलाती है या फिर पोटेंशियल मॉर्टिलिटी कहलाती है, क्योंकि वो अपने टाइम को पूरा करने के बाद उनकी मृत्यु हो रही है और पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि रियलाइज मॉर्टिलिटी जो होता है वो स्पेशल फीचर पे आधारित होता है, और वो जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर और साइज, कंपोजिशन, मतलब ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर और एंड साइज, कंपोजिशन एंड और किस पे, साइज, कंपोजिशन और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पे निर्भर करता है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पे निर्भर करेगा। ये बात को समझिए आप कि क्या है। पोटेंशियल मॉर्टिलिटी को हमने रिप्रेजेंट किया कि पोटेंशियल मॉर्टिलिटी क्या होती है कि वो हमेशा ओल्ड स्टेजेज में जाके एक आइडियल कंडीशन में उसकी मृत्यु होती है, जबकि होनी चाहिए। जबकि एक रियलाइज और एक्चुअल जो मॉर्टिलिटी होती है वो वहाँ पे रहने वाले इन्वायरमेंट जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जिसमें फिजिकल फैक्टर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर होता है, उसके रूप में आता है। और जो पॉपुलेशन है उसकी साइज़ क्या है, कंपोजिशन क्या है और डेंसिटी क्या है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो असेंबलिंग है और वहाँ पे ग्रुप है। तो
एक ग्रुप को सर्वाइव करने के लिए रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, मटेरियल की आवश्यकता होती है, तो वो साइज मतलब नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन साइज जो कि हमने पहले भी बताया आपको, वो कंपोजिशन। अब उसका कंपोजिशन क्या है, किस प्रकार का है, वो स्टेबल है, ग्रोविंग है, या फिर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, या फिर डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, वहाँ पे उनकी संख्या कितनी है, और उस संख्या के आधार पर, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, यू आर जस्ट रिमेंबर दैट टू द इंटरस्पेसिफिक एंड environmental struggles which are obtained due to the evolution theory, so Lamarckism and Darwinism। तो ये पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पे ये सारे फीचर्स होते हैं जिसके आधार पे यहाँ पे जो मृत्यु होती है वो आइडियल कंडीशन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस प्रकार से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं तो अ कन्वीनियंट वे टू रिप्रेजेंट द इंसिडेंट ऑफ द डेथ। अब हम एक ग्राफ बनाने का प्रयास करेंगे जिसके माध्यम से ये देखेंगे कि जो पूरा पॉपुलेशन है, जो अलग अलग ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन है जिसमें अलग अलग स्पीसीज होती हैं, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका एक हम कन्वीनियंट ग्राफ बनाएंगे। तो उस ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या इसका जो है क्या कहते हैं डेथ रेट है। तो अब देखिए हम थोड़ा सा एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। वी आर प्लॉटिंग टू द ग्राफ्स फॉर टू द बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट टू द death rate or the mortality that is going. This is we are take to the, they are the initial point, and these are initial point. One is goes to the, they are the diagonal and a straight line. Another is going in along with the, this is the convex line, and one is the going into the convex line. So that these are the form to the features, diagrammatic features to the diagonal curve, convex curve and concave curve. अब यहाँ पे हम तीन चीज़ों को देखेंगे और तीन चीज़ों के आधार पे हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ग्राफ कैसे प्लॉट है। ये इसको बोलते हैं सर्वाइवरशिप कर्व। अब यहाँ पे पहला जो है डायगोनल, ये क्या है, हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, ये क्या है, डायगोनल कर्व है, डायगोनल कर्व है। ये कॉन्वेक्स कर्व है, और ये जो है कॉनकेव कर्व है, कॉनकेव कर्व है। तीन प्रकार के ये हमारे पास कर्व है, और ये प्लॉट हमने किया क्या है, सर्वाइवरशिप ग्राफ है। तो इस सर्वाइवरशिप में ये तीन चीज़ें दिखानी हैं जब किसी भी पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से, और तो यहाँ पर इस डायगोनल कर्व जो बन रहा है, इसमें इस प्रकार के कर्व में जो इंडिविजुअल्स होंगे वो जो है उनकी जो मृत्यु होती है, मतलब मॉर्टेलिटी रेट इज कांस्टेंट एट ऑल स्टेज। तो मॉर्टेलिटी रेट यहाँ पे कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होती है हर स्टेज में, ऑल स्टेजेस में, ऑल स्टेजेस। तो उसको बोला जाता है डायगोनल कर्व। जबकि कॉनकेव कर्व में ये रिप्रेजेंट करते हैं कि पहले हम आ जाते हैं कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स का मतलब होता है कि आफ्टर द बर्थ विच आर गोइंग इनटू द डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ द लाइफ एंड देन अलॉन्ग विद द देयर, यहाँ से आके ये इस तरीके से जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये पूरी यहाँ पे थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जीवन को जी के फिर जो है इनकी मृत्यु होती है। तो एक ग्राफ ये होता है, और तीसरा ग्राफ ये होता है कि जहाँ पे सबसे कम जीवन जीते हैं और उनकी मृत्यु सबसे ज़्यादा अधिक होती है। तो तीन प्रकार के जो है हमने सामान्य भाषा में आपको बताया कि जहाँ पे पहला जो ऐसा ग्राफ है, डायगोनल कर्व है, जहाँ पे वो हर स्टेज में जो मॉर्टेलिटी रेट होगा वो कांस्टेंट होगा। इसके अंतर्गत आपकी हाइड्रा माइस आती हैं। कॉन्वेक्स में आएंगी पोटेंशियल लाइफ
जो ओल्ड स्टेजेस में मृत्यु होगी तो वो उसमें मैन आएगा, रैबिट आएगा, फ्लाइज आएगा, फ्रूट आएगा, और जबकि जो अर्ली स्टेजेस में इनकी मृत्यु हो जाती है लगातार, जो इनवर्टिब्रेट है, ओयस्टर है, ये सब आएंगे। तो 3 ग्राफ है, तो आपने समझा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इस हिसाब से ये जब बाउंड करके थ्रू आउट द लाइफ ओल्ड स्टेजेस में जब मृत्यु होती है तो उसको कॉनकेव बोलते हैं। पूरे हर स्टेज में जहाँ पे मॉर्टेलिटी जो रेट है वो कांस्टेंट होती है उसको डायगोनल कर्व बोलते हैं, और जब अर्लियर लाइफ में जिनकी मृत्यु हो जाती है तो वो कॉनकेव कर्व होता है। तो इस हिसाब से सर्वाइवरशिप ग्राफ के माध्यम से आपने समझने का प्रयास किया कि क्या मॉर्टेलिटी होता है और बर्थ रेट क्या होता है। तो इस आधार पे हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देख रहे हैं, और इसके बहुत सारे पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। तो इस आधार पे हम जो है अगले लेक्चर में इससे और जुड़ी हुई जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं उसको देखेंगे। धन्यवाद।